Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss about the MRL, Management Representation Letter, in case of tax audit. Because it's the time for tax audits, that's why we are discussing about the MRL in case of tax audit. Otherwise, MRL, Management Representation Letter, you can also use in other audits also. आप उसको you can ask from the management from other audits also, because I have received many messages whether MRL is also required in case of tax audit. So today we will discuss about that, whether MRL is also for tax audit or not. So before that, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CSNSR and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. And also, please like the video and share it with your friends so that maximum member can take benefit of this video. So regarding the MRL, Management Representation Letter, in case of tax audit, and one disclaimer is there, all these are my personal views and can't be construed the views of ICI, CSNSR, or any other person or any other authority. And please don't take it any legal advice or the legal opinion, and the professional advice or the professional opinion. And the purpose of this video is to just spread information, awareness, and the knowledge, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And please also check the ICI guidance note and the relevant income tax circular, any other Companies Act notification, or the circulars, or the ICI Code of Ethics. You can check it out, and also Standard of Auditing. You can check it out. So regarding the management representation letter, here the word is management representation and letter, means this is by the management itself. इसको हम कहते हैं written statement letter by the management, and it's covered by the SA 580 standard or auditing issued by the ICI. ICI ने कुछ स्टैंडर्ड ऑडिटिंग इशूड करे हैं जिसके ऊपर हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं फॉर द ऑडिटर्स टू यूज कि आपको ऑडिट कैसे करना है, क्या रिपोर्ट्स है, क्या रिप्रेजेंटेशन है. सो SA 580 इट डील्स विद द रिटन रिप्रेजेंटेशन. तो हम इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि व्हाट्स द पर्पस, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या डेफिनेशन है, वूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना है, एंड किससे लेना है रिप्रेजेंटेशन लेटर. अगर आपको रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं मिलता, व्हाट्स द फॉर्मेट, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेशन जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है एज पर SA 580 स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के लिए. तो 580 इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट है, दैट इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे हैव फुलफिल ऑल द दिस वन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दे हैव प्रोवाइडेड ऑल द कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो भी उनके पास है to the auditors. Basically, this is the objective. And the definition, which is into the SA 580, it's the definition of written statement. A written statement by management to confirm certain matters or support other audit evidence, does not include financial statements, the assertion therein are supporting books and records. तो बेसिकली जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर है, दिस इज नोट एंड सपोर्टिंग एविडेंस. दिस विल सपोर्ट जो आपका ऑडिट एविडेंस है. दिस इज नॉट एन ऑडिट एविडेंस, बट यस इट विल सपोर्ट जो आपके ऑडिट एविडेंस है या सम अदर मैटर्स है जिसके ऊपर कोई ऑडिट एविडेंस नहीं है, उसको इट विल दिस विल सपोर्ट बाय द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर MRL. ये आपको सपोर्ट करेगा. एंड SA 580, I ask you कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दिस इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर्स टू ऑब्टेन ए रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, और एंड उसमें एंड है रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट, एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोस चार्ज विद द गवर्नेंस. कि अगर मैनेजमेंट नहीं है, इन केस ऑफ कोई फॉरेन कंपनी है, वहां पे मैनेजमेंट तो आपकी आउटसाइड ऑफ इंडिया है, बट यस अगर फॉरेन कंपनी में जो यहाँ पे उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, तो दोस चार्ज विद द गवर्नेंस एंड written representation are audit evidence similar to the response to the inquiries
if they don't provide sufficient accurate audit evidence on their own about any matters, and it does not affect the nature or extent of other audit evidence that the auditor obtained about the fulfillment of management responsibility, the written representation shall be in the form of a representation letter and addressed to the auditor. ये सब कुछ आपका SA 580 में मेंशन है कि इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर कि आपको मैनेजमेंट से या दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस उनसे आपको एक रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना है अबाउट द मैनेजमेंट का, एंड दिस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर इज सपोर्टिंग टू योर ऑडिट एविडेंस और सम अदर मैटर्स। वो सारा आपका SA 580 में मेंशन है। देन उसका डेट एंड पीरियड, एंड डेट एंड पीरियड जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर की कौन सी डेट को आपने लेना है, क्या पीरियड है, इट स्पेसिफिक in SA 580 it mentioned the date on the report or written representation shall be as near as practical to, but not after the date of the auditor's report on the financial statement. And the period, जो period है, shall be for all financial statement and period referred to into the auditor's report. कि जो अपने डेट, जो आपने किस डेट को रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना है कि जब आप ऑडिट कर रहे हैं, then it should be near to that date. कि ऐसा नहीं है कि आपने ऑडिट कंप्लीट कर दिया, ऑडिटर रिपोर्ट भी साइन कर दी, उसके बाद आप उनसे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले रहे हैं। नो, इट शुड बी बिफोर साइनिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ताकि आप चेक कर पाए दिस इज द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्वायर द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्जेबल। एंड देन whom shall ask for the return representation, किससे लेना है, जो अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट, अब ऐसा तो है नहीं कि मैनेजमेंट कोई मिस्टर अंबानी या अडानी साहब वो खुद ही आपको साइन कर देंगे। नो, रिप्रेजेंटेशन आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर चीफ फाइनेंशियल CFO CEO या उसके इक्विवेलेंट पोजीशन पे, अगर वो पोजीशन नहीं है तो डायरेक्टर फाइनेंस एक्सेट्रा, उनसे आप ले सकते हो। या इन सम अदर केसेस जहाँ पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या कुछ केसेस में दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस, या कुछ केसेस में मैनेजमेंट खुद डिसाइड कर लेते हैं कि दिस पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेज प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप उनसे भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। एंड इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, तो उन केस में जैसे कोई पार्टनर्स है या कोई इंडिविजुअल है उनसे, या फिर सेम अगर वहां पे कोई CEO CFO है, तो दैट यू कैन टेक द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, यू कैन आस्क। This is the duty of the management to provide the written representation. But yes, which matters to be included, आप उनसे पूछ सकते हो मैनेजमेंट से कि मेरे को इन के ऊपर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर चाहिए। एंड मैनेजमेंट MRL से यू कांट स्किप फ्रॉम योर ड्यूटी, उसके ऊपर भी अभी हम डिस्कस करते हैं। एंड देन फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कोई ऐसा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट नहीं है कि आपको इस फॉर्मेट में ही चाहिए, बट यस इट शुड बी एड्रेस टू द ऑडिटर्स, एक लेटर टाइप में होना चाहिए। एंड इफ सम मैटर्स जो ऑफिशियली उनको मैनेजमेंट को डिक्लेयर करने हैं, जो ऑडिटर कैन टेक फ्रॉम देयर, तो उनको इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है इनटू द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। देन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक गुड MRL है, जो MRL के अंदर उसमें इट शुड मेंशन दैट it's the duty of the management to prepare the financial statements, and while preparing financial statements it gives true and fair view, and management has provided all the relevant information and access to the auditors as agreed into the audit engagement। जो audit engagement letter में हम भेजते हैं उसके accordingly हमने सारी information provide कर दी है, and all the transaction have been recorded are reflected in the financial statement। तो कुछ ये it should be then to the good MRL। then I told you it's the auditor's responsibility। ऑडिटर को he should ask from the management, आप एक लेटर पे you can ask कि I need a MRL on these matters। कुछ matters है while you are doing the audit, और उसके बेसिस पे management will provide you the MRL। and second thing, हमने अभी चेक किया SA 580, तो कहीं भी ये नहीं डिफाइन किया कि आपको सिर्फ बैंक ऑडिट में चाहिए MRL या सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट में चाहिए। इट्स द ऑडिटर, even if you are doing tax audit, then also it's your duty to ask for the MRL। तो if you are asking, अगर आपने कुछ मैनेजमेंट से MRL मांगा है, तो टू केसेस कैन बी
कि एक तो आपको एमआरएल मिल गया या अपना मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम एमआरएल नहीं प्रोवाइड करते। तो इन फर्स्ट केस इफ यू आस्क फॉर एमआरएल, मैनेजमेंट ने आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दी, एंड इफ यू हैव सम डाउट, तो उस केसेस में व्हाट यू हैव टू डू एज एन ऑडिटर, एंड अगर आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती उस केस में आपको क्या करना है। एंड सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर आपको मैनेजमेंट मिलेगा, दिस इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कांट स्किप फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको जो ऑडिट करना है, जो एज पर आईसीआई स्टैंडर्ड अदर जो नॉर्म्स हैं, यू हैव टू डू द ऑडिट अकॉर्डिंगली। आप ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में ये सब लिखा है तो आई कैन स्किप फॉर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो, यू हैव टू प्लान एंड एग्जीक्यूट योर इफेक्टिव ऑडिट अकॉर्डिंगली, जो आपका ऑडिट प्रोसीजर है। यस, इट विल सपोर्ट टू ऑडिट एविडेंस और सम अदर मैटर्स जहां पे आपको ऑडिट एविडेंस नहीं है। एंड देन फर्स्ट लेट्स सी कि अगर आपने यू आस्क फॉर द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, एंड इफ देयर आर सम डाउट, कि अगर आपको लगता है कि नहीं ऑडिट एविडेंस में तो कुछ हो रहा है एंड मैनेजमेंट इज सेइंग समथिंग एल्स, एंड इफ यू हैव सम डाउट, then first as an auditor you should attempt to resolve the matters, कि आपको चेक करने हैं कि how to resolve it, कि क्या डिफरेंस है, what's the by doing the performing various audit procedures, उसकी more details you can check उसका जो audit procedure है। then you should also check as an auditor, reevaluate the assessment and the integrity of the management in case not resolved, कि integrity of the management है। and you should also regulate the effect on the reliability of the representation and audit evidence in general, कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उसको इफ आपको मैनेजमेंट ने कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू रिजोल्व इट, अगर आपकी जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करी है, यू डिड योर बेस्ट, आपने जो further various audit procedure and re-evaluate the integrity सब चेक कर रही है, then you can go to the SC 705 जिसमें है modification to the opinion in the independent auditor report। तो आपको देखना है जो रिप्रेजेंटेशन आपके पास आई है उसके बेसिस पे what would be the effect on the auditor's report, and accordingly you can provide your auditor's report। This is in case there are some doubt to the reliability of the written representation। and second case, if you have not received written representation, अगर आपने रिक्वेस्ट करी है and management does not provide the written representation, then first you can discuss the matter with the management। आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हो what's the reason why you are not providing, this is your responsibility to provide the management representation letter, and मैनेजमेंट नहीं प्रोवाइड करती, then you should re-evaluate की मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी and evaluate the effect that it may have the reliability of representation and audit evidence in general, कि उसका क्या इफेक्ट होगा, and then take appropriate action and determine the possibility effect on the option of the opinion of the auditor's report in accordance with SC 705 जो पीछे हमने डिस्कस किया था। in case there are some doubt, आप रिजोल्व नहीं कर पा रहे, still doubts are there, then you should use SC 705, एक जो SC स्टैंडर्ड ऑडिटिंग आईसीआई ने इशू किया है, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन नोट प्रोवाइड कर रहा है, आपको प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, इज नॉट प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, देन यू शुड इवैल्यूएट अकॉर्डिंग टू SC 705। देन व्हाट वुड बी द ड्राफ्ट फॉर्मेट, ये एक ड्राफ्ट फॉर्मेट है। एंड फर्स्ट थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि आपने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ऑडिटर्स, इफ यू आर ए मैनेजमेंट, तो ये नहीं कि ऑडिटर्स ने आपको भेजा उसी के ऊपर साइन करके भेज दिया। नो, फर्स्ट यू शुड चेक कि ऑडिटर ने क्या क्या स्टेटमेंट मांगी, एंड कोई उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, यू कैन ऐड यू कैन लेस आप अकॉर्डिंगली एज पर जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए फ्रॉम योर क्लाइंट फ्रॉम योर एसएससी। एंड सेकंड थिंग, इफ यू आर मैनेजमेंट, सेम एज इट इज साइन करके मत भेज दीजिए, प्लीज चेक इट ये ऑडिटर क्या क्या डिटेल आपसे मांग रहे हैं। एंड इफ यू आर ऑडिटर, ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो स्टेटमेंट मांगी उसके ऊपर साइन कर दी। दिस शुड बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द मैनेजमेंट एंड इट शुड बी एड्रेस टू द ऑडिटर्स। ऑडिटर्स को एड्रेस होना चाहिए, ऑडिटर्स नेम जो भी फॉर्म नेम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या एड्रेस है उनका। देन अगर फॉर दिस इज फॉर द टैक्स ऑडिट, बिकॉज हम टैक्स ऑडिट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके ऊपर। एंड पीछे हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, लाइक
the books of accounts and other records are properly maintained, and it gives a true and fair view. And then also the responsibility of the management to maintain and prepare these books of accounts, and then all the information has been provided to the auditor. ये सब पीछे हमने अभी डिस्कस किया था. This is also the part of written representation letter. And then also you can take this from the management. Then this is the responsibility of the management. जो हम फॉर्म 3CD फाइल करते हैं, it's not our duty, हमारी ड्यूटी नहीं है फॉर्म 3CD. It's the duty of the management to prepare and present the form 3CD, and our duty is only to verify the form 3CD, and then accordingly to give our report. जो हमारी रिपोर्ट है इन फॉर्म 3CA or 3CB, as case may be, accordingly we have to give the report. So all these you can take from the written representation letter. Then one draft format, मैं अभी आपको draft format भी दिखाता हूँ, and also will forward you. अगर आपको किसी को चाहिए, you can download it from the CA संसार YouTube चैनल, स्पेलिंग चेक कर लेना है, जो सॉरी टेलीग्राम चैनल के वहां से डाउनलोड कर लेना. इन केस यू आर नॉट एबल टू फाइंड, देन यू कैन मैसेज मी, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. एंड उसी के पार्ट में जो पीछे हमने अभी डिस्कस किया था कि these are our responsibility, हमने to keep and maintain the accounts, and we have provide all the information to the to the auditors, and 3CD हमने prepare and prepare कर दिया, and the auditor's responsibility is to check and verify. And then other things जो कुछ और भी पार्ट है, not able to put into the slides, and मैं आपको भी इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ. दिस इज द ड्राफ्ट फॉर्मेट, और उसको अकॉर्डिंगली इन वर्ड फॉर्मेट, मैं आपको वर्ड फॉर्मेट में ही फॉरवर्ड कर दूंगा, सो दैट यू कैन एडिट, यू कैन कुछ उसमें मॉडिफाई करना है, डिलीट या ऐड कुछ और करना है, दैट यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली. और इसमें भी टू टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट है. वन इज फॉर द नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, अनदर वन इज द कॉर्पोरेट एसएससी. तो वन बाय वन मैं आपको शो ऑफ दिखाता हूँ. दिस द अगेन आई एम सेइंग दिस द ड्राफ्ट फॉर्मेट. अगर आप SA 580 देखोगे तो वहां भी आपको एक इलस्ट्रेशन, उसमें आपको एक ड्राफ्ट मिल जाएगा. सो दिस इज द ड्राफ्ट in case of non-corporate SSC, and this should be on the letterhead of the SSC and in the letter format जो पीछे हमने डिस्कस किया था, and addressed to the auditors कि क्या नेम है ऑफ द ऑडिटर्स, एंड देन चार्टर्ड अकाउंटेंट देयर एड्रेस, एंड ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि किस पर्पस के लिए सब्जेक्ट. एंड देन उसमें आपको उसका पैन कार्ड, कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन है, सर्विस टैक्स, GST, वैट, एक्साइज एक्सेट्रा में रजिस्ट्रेशन. देन आपको ये भी पूछना है कि किस क्लोज में, जो पीछे हमने डिस्कस किया था, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी, आप उसका वीडियो आप यू कैन चेक इट फ्रॉम द CA संसार यूट्यूब चैनल. उसमें पूरा डिटेल में क्लोज बाय क्लोज, क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी, क्लोज ई, पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया था. तो किस क्लोज में आप उनसे पूछ सकते हो किस क्लोज में आप एप्लीकेबल है. अदरवाइज यू कैन टेल देम कि इस क्लोज में यू आर एप्लीकेबल टू फॉर द टैक्स ऑडिट. फिर क्या आपकी प्रॉफिट शेयरिंग, इन केस अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कुछ कोई एडिशनल पार्टनर है, या कुछ और कोई से बिजनेस आप कैरी कर रहे हो. तो लोट्स ऑफ थिंग्स आर देयर कि क्या आपको, यू हैव टू आस्क फ्रॉम द मैनेजमेंट, बिकॉज समटाइम वी कैन डू द ऑडिट फ्रॉम द, जो हमारे पास ऑडिट प्रोसीजर है, बट लोट्स ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच वी नीड इट फ्रॉम द मैनेजमेंट इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी, तो कोई ट्रांजैक्शन अगर किसी रिलेटेड पार्टी के साथ है तो वी आर नॉट अवेयर कि कौन उनकी रिलेटेड पार्टी है, तो दैट इंफॉर्मेशन वी कैन आस्क फ्रॉम द मैनेजमेंट. या किस किस एक्ट में दे आर रजिस्टर्ड, और कोई डिमांड्स है, कहाँ कहाँ कितनी डिमांड्स है, या कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है. लोट्स ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच वी शुड आस्क फ्रॉम द मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट से हमने पूछना है. एंड रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन, देन कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एसेट्स है, लोट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. ये सारा इसको पूरा डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकता, तो जस्ट आई एम शोइंग. एंड लास्ट में जो एक क्लोज 40 है, उसके ऊपर पूरा हमने क्लोज 40 के ऊपर एक हमने पूरा वेबिनार कंडक्ट करवाया था, उसको आप चेक कर सकते हो. माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप as much details you can provide instead of giving this disclaimer कि हमने एसएससी को दे दिया बट नोटेबल उसके सिस्टम में, ऐसा नहीं. आप पूरी डिटेल जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आप क्लोज 44 में आप उसको फिल करिए, एंड आस्क द एसएससी आपको डिटेल प्रोवाइड करे, एंड देन यू कैन चेक इट फ्रॉम द form 3CD. So this is regarding the draft format. Again I'm saying this is the draft format. इसको आप modify कर सकते हो accordingly. मैं आपको you can download from the Telegram channel of CS Sansar. And then this is
फॉर द कॉर्पोरेट एसएससी। तो कॉर्पोरेट एसएससी में भी यू कैन आस्क फ्रॉम द मैनेजमेंट, और जो पीछे हमने डिस्कस किया था इसमें लेटर हेड ऑफ द मैनेजमेंट, जो सीएफओ, सी और इक्विवेलेंट है डायरेक्टर फाइनेंस, या जो हु आर रिस्पांसिबल टू प्रिपेयर। तो इसमें सेम थिंग, बिकॉज दिस इज फॉर द टैक्स ऑडिट पर्पस, हम टैक्स ऑडिट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट है। अगर आपको स्टैट ऑडिट के लिए चाहिए तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। सेम थिंग कि management responsibility to manage, prepare the accounts and give all the information to the auditors, and then it's the duty of the management to prepare and present form 3CD. Auditor duty is to verify all then their PAN card, then MOA, memorandum of article of association, कुछ changes हैं उसमें, कुछ आपकी शेयर होल्डिंग में, that you can ask, and other thing कि कुछ उसके अंदर almost same है, but some few things are changed from the non corporate एसएससी। आप उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर दोगे, ये भी आपको सीएस संसार यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, और सॉरी टेलीग्राम चैनल पे। एंड देन क्लोज 44, ये अगर आपको अगर डिस्क्लेमर ही देना है तो दैट यू कैन डू इट, बट इफ यू कैन प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, अगर आपको एसएससी ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है तो देन प्रोवाइड एज मच एज यू कैन गिव इट। तो इसमें पूरी कंप्लीट डिटेल ऑफ ड्राफ्ट फॉर्मेट में यू कैन आस्क फ्रॉम द मैनेजमेंट कि यू कैन प्रोवाइड देम, और आप जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मैनेजमेंट से यू कैन सेंड बाय मेल, या जैसे भी आप भेज सकते हो, एंड आस्क देम, रीड इट आउट, और उसके अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो दीज टू आर द ड्राफ्ट फॉर्मेट ऑफ द मैनेजमेंट। सो नाउ आई होप द मैक्सिमम क्वेरीज, जिन लोगों ने मैसेज किया था कि वेदर MRL is also applicable for tax audit, yes of course it's also applicable for the tax audit, and not only for the tax audit। अगर आप SA 580 देखोगे जिसमें रिटर्न स्टेटमेंट या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज फॉर द ऑडिट कि ऑडिटर हैज टू आस्क, it's the duty, it's the responsibility of the auditor to ask from the management to provide the management representation letter, और नहीं प्रोवाइड करते तो आपको accordingly you have to give your report। So in case any other doubt या any other query, you can message, instead of message you can call me, because क्या हो रहा है आजकल विदाउट नेमिंग, बिना नाम के लोग मैसेज देते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट द क्वेरी सेक्शन। आपको क्वेरी सोल्व के लिए नहीं है, आपको एटलीस्ट बताओ तो सही। प्लीज चेक, जब भी मैं आपको कोई वीडियो बनाता हूँ आई ऑलवेज सेड माई सेल्फ सीए विवेक खुराना। तो प्लीज वेन एवर यू सेंड मैसेज टू एनीवन, एटलीस्ट गिव योर इंट्रो, आप अपना इंट्रोडक्शन तो दो कि माई सेल्फ दिस एंड दिस इज माई क्वेरी, एंड क्वेरी जितनी डिटेल में दो देन इट्स गुड थिंग। कई लोग पूछते हैं सर 2 करोड़ इज द टर्नओवर, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल। अरे भैया कैसे बताएंगे, पूरी डिटेल तो बताओ, क्या है, कौन सा क्लोज है, सारा कुछ। सो एनीवे, थैंक यू वेरी मच, बाय।